हो सबने हेडिंग लिखा है ना क्लास? यस सर। यस सर। चलिए, सर ये नहीं लिखा है। ये लिख लीजिए, व्हाई पेरोल सिस्टम्स आर इंपॉर्टेंट। 6 पॉइंट जल्दी जल्दी लिख लीजिए, अगर नहीं लिखा तो लिख लीजिए जल्दी, और लिखने के बाद मेरे को बताइए। चलिए, पहले 6 पॉइंट लिख लिया, नेक्स्ट टाइम में लिखिए। पेरोल इज एन इंटीग्रल पार्ट, पेरोल इज एन इंटीग्रल पार्ट of a company's operation, of a company's operations, full stop. Not only is it responsible, not only is it responsible for employees salary, compensation, for employees salary compensation, but it also plays plays an important role in protecting a company, by ensuring it is following compliance, compliance with tax legislation, legislation, with tax legislation, full stop. नेक्स्ट लाइन में हेडिंग डालिएगा, पहला पॉइंट एम्प्लॉय मोराल, MORALE, एम्प्लॉय मोराल। डाल लिया हेडिंग? क्लास एम ऑडिबल? यस सर। चलिए, हेडिंग डाल लिया, उसके आगे डैश करके लिखिएगा एम्प्लॉय मोराल के अंदर, एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कीपिंग employees, an important part of keeping employees happy, is paying them, paying on time, full stop. Ensuring that you have a payroll system, that pays PAYS, pays your company, in a timely manner, on a consistent basis, will definitely impact your employee morale, full stop. Late and inaccurate payment
late and inaccurate payment is likely to cause TO2 cause your employees to question TO2 to question the financial stability of the company, stability of the company. Full stop. This might affect the overall environment and culture of your company, comma, resulting a negative attitude, from the employees that could bleed BLEED, that could bleed into their day to day into their day to day tasks and cause underperformance full stop. आगे लिखिएगा उसी में a company's workforce is often the heart of a company, is often the heart, HEART, heart of a company, and reliable and accurate payroll is part of what keeps that heart beating, full stop. Number 2, next heading डालिए compensation. Next heading number 2, compensation, COMPENSATION, compensation. इसमें लिखिए payroll goes 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 beyond an employee's salary. Payroll goes beyond an employee's salary. Full stop. An employee's compensation can also include bonuses and benefits on top of their salary. Full stop. Bonuses and salary increases associated through performance evaluations are also Sorry, sir. Bonus and salary. bonuses and salary increases associated through performance evaluations are also managed
are also managed through the payroll system, through the payroll system, full stop. नेक्स्ट हेडिंग डालिए नंबर 3, reputation. नेक्स्ट हेडिंग नंबर 3, reputation. REPUTATION, reputation. डैश करके लिखिए इसमें. not only does a company have a financial obligation, 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 establishes to their employees, comma, but they must also ensure that its payroll activities are compliant with compliant with the country's country apostrophe s, with the country's tax and employment legislation. Country's tax, CONTRY apostrophe s, country's tax and employment legislation. Full stop. उसी में आगे लिखिए following legislative laws, LAWS, laws and efficiently meeting tax obligation, establishes a company as a stable employer, full stop. This boost to a company's reputation, will ultimately attract and retain a solid pool, pool of talent. Retain a solid pool of talent. Full stop. नेक्स्ट हेडिंग डालिए नंबर 4, गवर्नमेंट रिपोर्टिंग. नेक्स्ट हेडिंग नंबर 4, गवर्नमेंट रिपोर्टिंग. डैश के लिखिए a payroll system helps companies comply with tax and employment legislation. Full stop. A company needs to report their
to report their payroll tax withholdings, comma, payments and employee statuses to local, comma, state and federal government, state and federal government on a quarterly or annual basis, on a quarterly or annual basis. Full stop. Your company's requirement often depend on the size, Sir, your company, your company's requirement often, OFTEN, often depend on the size of your payroll, and the type of business you are running, Full stop. Write down next heading, number 5, following labor laws. Next heading, number 5, following labor laws. चलिए इसमें डैश करके लिखिए, अंडरस्टैंडिंग लेबर कंप्लायंस in labor compliance is another way, way to make sure your company has happy employees, and is following local and federal laws, federal laws. Full stop. Each state has different labor laws. Each state has different labor laws regarding minimum wage, comma, overtime, comma, labor law posters, comma, termination procedures,
procedures and more. Termination procedures and more. M-O-R-E, more, full stop. Payroll systems and payroll systems and payroll administrators. Payroll systems and payroll administrators make those rules, easier to follow and understand. Full stop. Sir, administrators or administrations? एक मिनट क्या लिखा है? रूल्स easier to follow and understand. Payroll systems and payroll administrators make those rules easier to follow and understand. ठीक है? चलिए, राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग नंबर 6. Next heading number 6, paying taxes. Paying taxes. P-A-Y-I-N-G, paying taxes. इसमें डैश लग लिखिए. To follow state and federal tax laws. To follow state and federal tax laws, comma, companies need To follow state and federal, F-E-D-E-R-A-L, to follow state and federal tax laws, comma, companies need to TO2 withhold income and payroll taxes from an employee's payroll and pay those taxes on time. Full stop. उसी में आगे लिखिएगा, employers often cover the cost of employees. Employers often cover the cost of employees benefits, and a portion of that might, M-I-G-S-T, might come from an employee's gross wage. Come from an employee's gross wage, WAGE, wages वाला wage है. Full stop. A company's payroll system also needs to deduct social security, social security and Medicare payments from
an employee from an employee's gross wage, from an employee's gross wage, 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 full stop. On most payrolls, comma, and on most payrolls, comma, an employer's payroll system, will withhold federal and state income taxes, state income taxes from an employee's payroll, हो गया भाई? यस सर। किसी का छूटा तो नहीं है? सर स्पेलिंग मिस्टेक बहुत हुई है किसकी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई बालक? दीपेश? सर, कहीं कहीं। कहीं और बहुत में तो जमीन आसमान का अंतर होता है। तो कहीं कहीं हुई है कि बहुत ज्यादा हुई है? कहीं कहीं सर। तो पूछ लिया करो ना, डर लगता है क्या पूछने में? नो सर। तो फिर क्यों नहीं पूछते हो, गलत सलत लिख देते हो? क्या फायदा है ऐसे लिखने से? कैसे करेक्ट करोगे स्पेलिंग? एक चीज देखो, एक चीज बता रहा हूं, एक होता है शब्द अर्थ। अर्थ मतलब जानते हो क्या होता है? मीनिंग। दीपेश सुन रहे हो ना? यस सर, सुन रहा हूँ। अब आपने अर्थ में एक बिंदी लगा दिया तो वो क्या बन जाता है? अनर्थ। क्या बन जाएगा बालक? क्या सर? सुन भी नहीं रहे हो ध्यान से? ठंडी लग रही है क्या? देखो, एक शब्द होता है हिंदी में, आपने हिंदी पढ़े हो कि नहीं? कौन से मीडियम से पढ़े हो? हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम? हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम, कोई बात नहीं, माध्यम कोई भी हो, लेकिन दोनों का अर्थ और आशय एक ही होता है। हिंदी मीडियम पढ़े हो तो बहुत अच्छे से जानते हो कि अर्थ, अर्थ का मतलब क्या होता है? मीनिंग, है ना? यस सर। और अगर उस अर्थ में आपने एक बिंदी लगा दिया ऊपर तो वो क्या बन जाता है? अनर्थ। यस सर। तो कितने का अंतर, कितना गलत लिखा आपने? गलती से एक बिंदी लगा दी है तो अर्थ का अनर्थ हो गया। तो वैसे ही आप भी अपनी कॉपी में, मैं बोल कुछ रहा हूं, स्पेलिंग कुछ और लिख देंगे, तो जब एग्जाम में आप पढ़ेंगे तो आप कहेंगे सर ने तो पता नहीं क्या गलत गलत पढ़ा दिए हैं। तब उस समय आपको ये याद नहीं आएगा कि मैंने अर्थ का अनर्थ लिख दिया है। तो इसलिए जब मैं लिखा रहा हूं तो कोशिश करिए कि मुझसे पूछ लीजिए। अगर क्लास में मुझसे एक आध दो बार लोग रिपीट भी करते हैं, सर यहां से बता दीजिए, मैं तुरंत बताता हूं, मैं इफ एंड बट नहीं करता हूं। लेकिन आशय ये है कि आप गलत ना लिखें, सही सही लिखें, उससे आपका ही फायदा होगा। हमको तो बड़ा मजा आएगा कि एग्जाम में कॉपी चेक करने, मेरे यार ये गलत है पूरा काट दो, तो उससे किसका नुकसान होगा दीपेश? मेरा सर। तो इसलिए अभी समय है, थोड़ा सा उसको सही लिखेंगे तो आपको ही फायदा होगा, ये आपके फायदे की बात कर रहा हूं। ठीक है, चलिए क्लास नेक्स्ट हेडिंग। ये तो आपका वाई पेरोल इंपॉर्टेंट, ये तो खत्म हो गया। ठीक, अब सिलेबस देख के बताओ कौन सी हेडिंग बची हुई है बच्चों? कहां गई महिमा पांडे? महिमा है कि नहीं क्लास में? महिमा नहीं है सर। नहीं है? ऐड तो किया था मैंने महिमा को। अदिति चौधरी, अदिति, जी सर। अब कौन सा टॉपिक बचा है?
सर अभी वो बचा है, क्या कहते हैं, फाइनेंशियल डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। अब इसको लिखा पढ़ा दे कि असाइनमेंट दे दें? सर जो आपकी इच्छा, हम थोड़ी ना इन सब चीजों में बोल सकते हैं। नहीं नहीं, आप बताइए, जो कहिए वो कर देंगे। सर ऐसे थोड़ी ना होता है सर, आप टीचर हैं। आई नो आई एम ए टीचर। चलिए, चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो भाई। बालक बालिकाओं, नेक्स्ट हेडिंग क्या थी भाई? स्लाइड देखा जाए, ये है स्लाइड। नेक्स्ट हेडिंग है आपका लास्ट, अकाउंटिंग। हेडिंग डालिए अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मतलब पता है सभी क्या होता है? व्हाट इज एन अकाउंट? अकाउंट मतलब पता है? अकाउंट एंड अकाउंटिंग। क्लास, आई एम ऑडिबल? हेलो क्लास? सर आपकी आवाज आ रही है। हाँ प्रियांशु, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंट्स एंड अकाउंटिंग? सर आवाज तो आ रही पर मेरे को पता नहीं सर। वेरी गुड बेटा। श्वेता, श्वेता गुप्ता, Yes, sir. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंट्स एंड अकाउंटिंग? फर्स्ट यूनिट में मैं समझा चुका हूँ, फर्स्ट यूनिट में मैं समझा चुका हूँ, इसलिए मैंने पूछा। फर्स्ट हम नहीं थे सर, क्लास नहीं अरे आप नहीं थी तो क्या अभी तक आपने नोट्स कंप्लीट नहीं किया क्या? सर नोट कंप्लीट है सर, मैंने सेकंड यूनिट पढ़ा है अभी और थर्ड तो यूनिट फर्स्ट में पढ़ यूनिट क्यों रहे नहीं हैं। पढ़ी है? ये सब फालतू की बात है, बहानेबाजी की। सर फर्स्ट यूनिट पढ़ी है, नवंबर दिसंबर जनवरी खत्म हो रहा है, 3 महीने का, और अभी तक आप फर्स्ट सेकंड यूनिट पढ़ पाई हैं। वेरी शेम। सॉरी सर, आज पढ़ेंगे तो बता देंगे। सॉरी क्या होता है? 24 आवर्स घर में रह रही, कॉलेज नहीं आना है, कुछ करना नहीं है और सॉरी बोल रही है। चलिए, ये देखो महिलाएं, लड़कियां जो है धीमे धीमे गायब होना शुरू हो रही हैं। तिश्ता केसरवानी और शिवानी सब थैंक यू हो रही हैं। सुधांशु यादव है क्लास में? सुधांशु, यस सर, प्रेजेंट सर। आपकी दो आईडी दिख रही है लिस्ट में। यस सर, थोड़ा नेटवर्क इशू इसलिए 2 जगह से किया, लैपटॉप से भी किया, फोन में भी। आवाज अच्छा, नहीं आ तो रही रह रहे के सर। किसको तुम फॉलो कर रहे हो, लैपटॉप की मोबाइल? अभी सर फोन से बोल रहे हैं सर। अच्छा, फोन से बोल रहे हो, चलो अच्छा ठीक है, जी सर। बंद कर दो अपना फोन। सिद्रा सोएब क्लास में है? सिद्रा, सिद्रा, सिद्रा। Yes, sir. हाँ, आप बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंट्स एंड अकाउंटिंग? सर अकाउंट कैसे, मतलब अकाउंटिंग तो ये होता है जिसमें हम पूरा प्रोसेस जो है अपना फाइनेंशियली स्टोर करे रहते हैं, और अकाउंट्स जैसे जैसे कि बैंक अकाउंट्स होते हैं यूजुअली, खाता। हाँ, तो उसमें क्या करते हैं? हम अपनी मनी स्टोर करते हैं, और अकाउंटिंग तो एक प्रोसेस हो गया ना सर कि हम कैसे स्टोर कर रहे हैं, उसमें पूरा रिकॉर्ड रहता है। क्या स्टोर कर रहे हैं उसमें? अपना फाइनेंशियली, मतलब अपने पैसे स्टोर करेंगे, अपने फाइनेंशियल। पैसे स्टोर करेंगे। अच्छा, चलिए ठीक, गुड। शादिका, 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 शादिका सफाक है क्लास में कि नहीं है? कुछ तो लोग ऐसे होते हैं सुन के भी अनसुना कर देते हैं। चलो कोई जरूरत नहीं रिस्पॉन्स करने की। हाँ अंश, बोलना चाहते हो? सर हिसाब किताब लिखना। एग्जैक्टली देखो, दो चीजें हैं, एक अकाउंट है, एक है अकाउंटिंग। जब तक हमारे पास अकाउंट नहीं होगा हम अकाउंटिंग नहीं कर सकते हैं। अकाउंटिंग जो टर्म है वो अकाउंट्स टर्म से डिराइव हुआ है। मींस अकाउंटिंग मतलब क्या होता है? एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होता है
कि जहां हम अपने अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। अकाउंट का मतलब ये नहीं हुआ है कि जिसमें हम अपने केवल मनी को रखेंगे, ठीक, अकॉर्डिंग टू अभी एक बालिका ने बताया था जिसमें हम लोग पैसे को, मनी को रखते हैं। अकाउंट्स का मतलब होता है it is a place. Account is a place or a location or a file or a document where we kept our day-to-day or financial transaction or any other transaction, billing statement, whatever the transaction we made, either it will be term in of financial or in term of other things. दूसरे टर्म्स में भी हम अपने ट्रांजेक्शन को कर सकते हैं। तो वो जो भी हमारी लेन देन की प्रक्रिया होगी उसको ही हम जहां पे उसका रख रखाव करते हैं उसको हम बोलते हैं अकाउंट्स। और जो तरीका हम अपनाते हैं, द प्रोसेस विच अडॉप्ट्स फॉर मेंटेनिंग आवर अकाउंट्स इज कॉल्ड अकाउंटिंग। बात समझ में आ गई क्लास? हेलो, Yes, sir. यस सर। चल बहुत आसान सा था। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए अकाउंट्स। क्या है स्लाइड में, क्या दिख रहा है? अकाउंटिंग। हेडिंग डालिए अकाउंटिंग, इसमें लिखिए accounting is how your business records, accounting is how your business records, comma, organizes and understands its financial information full stop। next line, Sir, can you please repeat? साइड में लिखी हुई है। वही मैं कहने जा रहा था, वापस स्लाइड में लिखा हुआ है। सर आपने लिखवाया भी है। ये लिखवाया था पहले? यस सर। कोई बात नहीं, फिर लिख लो दोबारा। लिखवाया है, पढ़ाया है, समझाया, उसके बाद लोगों को नहीं आता है कि अकाउंट और अकाउंटिंग क्या होता है। ये तो आपके क्लास की स्थिति है, बस क्लासेस नहीं चलती है, टाइम से नहीं चलता है, मतलब कंप्लेन्स हैं 70-100 आपकी कंप्लेन्स हैं, लेकिन जो 2-4 क्लास चलती भी है, थोड़ा बहुत सिलेबस भी ट्रैक पे है, वो भी आप लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता है, ना आता है, ना करते हैं, ना समय है आपके पास। पता नहीं, जैसे एक आध दो क्लास नहीं चली, वो चल जाएगी तो कैसे उसको आप लोग मैनेज करेंगे, गॉड नोस। ये तो आपकी क्लास की स्थिति है। जो टीचर्स नहीं जानते, जो नहीं पढ़ाते, उनके बारे में नहीं कह सकते, लेकिन मैं तो आपकी क्लास का स्टेटस जान रहा हूं कि बस से बुरा कंडीशन आपकी क्लास का। असाइनमेंट टाइम पे देना नहीं है, आज बोलेंगे देने के 4 दिन बाद असाइनमेंट देंगे। अभी भी कुछ लोगों का असाइनमेंट आज तक मेरे पास आ नहीं पाया है, छाप के असाइनमेंट देते हैं, कुछ पूछ लो तो कुछ आता नहीं है। ये तो इतनी गंदी पोजीशन है आपकी क्लास की, स्पेशली गर्ल्स आपकी क्लास की। लिख लिया भाई एक लाइन? क्लास एम ऑडिबल? जी सर। यस सर। चलिए आगे लिखिए, उसी अकाउंटिंग के डेफिनेशन में आगे। यू कैन थिंक ऑफ अकाउंटिंग, यू कैन थिंक ऑफ अकाउंटिंग, you can think of accounting as a big machine, that you put raw, raw financial information into records of all your business transactions, comma, taxes, comma, projections, etc. एक मिनट क्लास होल्ड करिएगा, कोई कहीं जाएगा नहीं।
हाँ लिखिए, एक्सेट्रा, दैट, then, the, and then spits out, spits, spits, spits out of an easy to understand, an easy to understand story about the, to understand story about the financial state, about the financial state of your business, the financial state of your business, full stop. नेक्स्ट लाइन लिखिए, अकाउंटिंग टेल्स यू वेदर, अकाउंटिंग टेल्स यू वेदर और नॉट, अकाउंटिंग टेल्स यू वेदर और नॉट, टेल्स यू वेदर और नॉट you are making a profit, you are making a profit, comma, what your cash flow is, comma, what Sir, tells you whether or not. you are making a profit, you are making a profit, comma, what your cash flow is, what your cash flow is, comma, what the current value of your company's assets, what the current value of your company's assets and liabilities मतलब होता है जिम्मेदारियां, liabilities is, is, and which parts of your business are actually making money, full stop. हो गया सबका डेफिनेशन? यस सर। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लिख लिया भाई हेडिंग क्लास फाइनेंशियल अकाउंटिंग? हेलो यस सर। यस सर। जी, कुछ कहना चाहता है कोई?
अब मुझे लगता है कि आज इतना ही रखना चाहिए, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। फाइनेंशियल हेडिंग, अकाउंटिंग हेडिंग डाल लीजिए, इसको हम लोग अपनी आने वाली क्लासेस में कंप्लीट कर लेंगे। किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। सर जी उज्जवल। सर आपने एक वर्ड यूज किया प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब होता है किसी चीजों को पहले से बताना, प्रोजेक्ट करना, अनुमान लगाना, किसी के बारे में, किसी चीज के बारे में बताना, प्रोजेक्ट करना, समझाना। ठीक है उज्जवल? यस सर। जी। अटेंडेंस कहाँ है? फर्स्ट ईयर प्रोसेस अटेंडेंस, बिजनेस यूनिट हैंडलिंग, अटेंडेंस लिस्ट, SIP फर्स्ट ईयर, ये है अटेंडेंस। आज क्या डेट है भाई क्लास? 27। 27। जी 27 जनवरी 2021, बहुत अच्छी डेट है आज की। चलो भाई, रोल नंबर 1 प्रेजेंट सर। क्या नाम है, नाम बताओ। योगेश कुमार पांडे। रोल नंबर 2, रोल नंबर 2, रोल नंबर 2 प्रेजेंट है कि नहीं है? नहीं सर। अच्छा, रोल नंबर 2 है कुशाग्र पाठक। चलो, रोल नंबर 3, प्रेजेंट सर। क्या नाम है तुम्हारा? हर्ष यादव सर। चलो, अच्छा नाम है, गुड। रोल नंबर 4, प्रेजेंट सर। क्या नाम है? शुभम कुमार। रोल नंबर 5, रोल नंबर 5 उमेश गर्ग, नहीं है। रोल नंबर 6, यस सर। क्या नाम उज्जवल, है? उज्जवल सिंह। उज्जवल। रोल नंबर 7, प्रेजेंट सर। क्या नाम है? सर योगेंद्र कुमार। अच्छा, योगेंद्र वो। रोल जी नंबर सर। 8, रोल नंबर 8 कहाँ है भाई? शादी का शफाक, ये तो थी क्लास में। हाँ सर है। अभी भी है ये, मतलब क्लास में ऑनलाइन हो के मैडम नाश्ता पानी कर रही, नहा धो रही हैं। नहीं सॉरी सर, बाहर थे सॉरी सर, सर, रियली सॉरी मैंने आपको कितनी बार नाम लिया था? सर, पढ़ा रहा था बाहर मैं। थे सर, बाहर बहुत क्या जरूरी करते काम थे? से गए थे सर, रियली सॉरी सर, रियली आप सॉरी डिस्कनेक्ट कर देती, मुझको बेवकूफ बना रही है क्लास में कनेक्ट होके। सर, रियली सॉरी, मैंने सुना ही नहीं सर, मोबाइल जेब में था और बहुत जरूरी काम से वाह बाहर वाह, जाना। इसीलिए तो मैं कहता हूँ ना कि क्लास के गर्ल्स के जो हालात है बद से बदतर है, मोबाइल जेब में डाल नो के सर, टहल रहे हम हैं। डेली क्लास टाइम अटेंड कर रहे हैं सर, ऐसा नहीं है सर, सिर्फ आज चलिए, गलती हो गई हमसे। चलिए। रोल नंबर 8 शादी का शफाक ना? यस सर। रोल नंबर 9, प्रेजेंट सर। क्या नाम है? मोहम्मद रिजवानुल हसन। मोहम्मद रिजवान, हाँ रिजवानुल हसन। चलो, रोल नंबर 10, रोल नंबर 10 नहीं है। 10 कौन है भाई, देख लिया जाए। हर्षित सिंह। रोल नंबर 11, प्रेजेंट सर। क्या नाम है? सर प्रियांशु सिंह। प्रियांशु, अच्छा बच्चा है। रोल नंबर 12, रोल नंबर 13, 14, 15, 16, प्रेजेंट सर। क्या नाम है? सर 16 मोहम्मद सलमान अंसारी। सर 16 शील निधि त्रिपाठी। अच्छा अच्छा अच्छा, आप लोग क्लास बड़ी कम करते हैं। शील निधि त्रिपाठी, मोहम्मद सलमान अंसारी करते हैं। अरे आप अटेंडेंस का रिकॉर्ड देख के मैं बोल रहा हूँ। कहाँ इतना मुझे याद रहता है कि आप कौन है, क्या नाम है, कितनी करते हैं, कितनी नहीं करते हैं। तो रिकॉर्ड जो मेरे पास मेंटेन है उसको देख के मैं बता रहा हूँ। क्या चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे अंसारी जी और त्रिपाठी जी? सर 1-2 क्लास मेरी छुट्टी है, बाकी सब हमने रेगुलर हो जाइए। अब जो है सो आपकी बात
वो आप जानिए कितना रेगुलर है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप रेगुलर रहेंगे तो बेहतर रहेगा। रोल नंबर 17। सर विभम शर्मा। 17 कौन है? विभम शर्मा। विभम शर्मा। प्रेजेंट है। रोल नंबर 18। रोल नंबर 18। प्रेजेंट सर। क्या नाम है 18? सर गौरांग मिश्रा। गौरंग मिश्रा। रोल नंबर 19। प्रेजेंट सर। रोल नंबर 20। प्रेजेंट 20 19 present? प्रेजेंट। हाँ बेटा 19 का लगा दीजिए। 19 हाँ 19 धर्मेश सिंह। यस सर। रोल नंबर 20 सोनू तिवारी है। यस सर। रोल नंबर 21 अंश पांडे। अंश पांडे 21। 22 23 24 यस सर। 25 प्रेजेंट सर। प्रेजेंट 25। 24 है प्रांजल। यस सर। प्रांजल भी है और आदित्य भी है। यस सर। चलो रोल नंबर 26 महिमा पांडे। 27 क्या नाम है 27 का? गुप्ता जी हैं। चलिए प्रेजेंट। 28 ध्रुव चौरसिया। 29 प्रेजेंट सर। क्या नाम है? सर महेश कुमार शुक्ला। पी शुक्ला जी, ठीक है। रोल नंबर 30 प्रेजेंट सर। क्या नाम है? सुधांशु यादव। जी यादव जी। स्वस्थ हैं आप? यस सर, 1 नंबर। 1 नंबर। 2 नंबर क्या होता है इसका मतलब? चलिए 1 फर्स्ट नंबर। क्लास सर। तो 2 नंबर क्या होता है फिर? अगर मैं तो बोलूं कि मैं 2 नंबर। तबीयत खराब हो जाता है 2 नंबर में। चलो ठीक है भाई, मान गए। रोल नंबर 31 32 33 34 35 36। प्रेजेंट सर। 36 कौन है भाई? सर आदित्य चौधरी। जी चौधरी जी। 37 38 प्रेजेंट सर। अभिषेक कुमार मिश्रा। जी बेटा। 39 प्रेजेंट सर। सार्थक। 40 प्रेजेंट सर शुभम सिंह। 41 प्रेजेंट सर। 42 श्वेता। 43 प्रेजेंट सर रितेश मौर्य। 44 45 46 प्रेजेंट सर। 47 प्रेजेंट सर। 48 प्रेजेंट सर। 49 प्रेजेंट सर। 50 51 प्रेजेंट सर। 52 प्रेजेंट सर। 53 54 55 56 57 प्रेजेंट सर। अंशु गुप्ता। 58 59 प्रेजेंट सर। 60। प्रेजेंट सर। दीपेश कुमार। चलो और किसी का अटेंडेंस नहीं छूट रही है? सर 41 यस आदर्श सर। यादव। रोल नंबर 2। रोल नंबर 2 2 कहाँ थे? सर वॉशरूम चला गया था। अच्छा, और किसका छूटा? सर 41 आदर्श। आदर्श। 40 वाला तो लगा हुआ है भाई। 41 सर। हाँ बेटा लगा है 41। थैंक्स। सर 46। सर 46 कौन आ गया भाई? सर सागर कुमार। सागर लगा है 46। और कोई? सर सील निधि त्रिपाठी में सब पहले में सब प्रेजेंट रहता है, सब विकास त्रिपाठी नाम से।
विकास, अरे यार अब एक नाम हम कर सकते हैं ना, या तो विकास त्रिपाठी या सील नहीं सर त्रिपाठी। सर वो जीमेल आईडी सर उसी नाम से बनी सर, उससे सर मैं प्रेजेंट रहता था। तो 100 आईडीज तुम लोग ऐड हो जाओगे तो हम किसको किसको मेंटेन करेंगे यार। सर पहले आप सही से अटेंडेंस नहीं लेते थे ना सर। चलो कोई बात नहीं, अब आज तो ले लिए ना। हाँ सर आज ले लिए तो सर और आप पहले भी मैंने नाम से ही आपका अटेंडेंस लिया है। ठीक, चलो नहीं कोई सर बात नहीं। नाम से सर, आप उस पहले तो सर विकास त्रिपाठी नाम से सर प्रेजेंट हूँ मैं सर। अच्छा चलो ठीक, ठीक है बेटा। हाँ चलो भाई, इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।